شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جو ہمارا ٹاپک چلتا ہے برابر، کافی دیر سے یہ سیریز چل رہی ہے اور اب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ موت کا موجد کون ہے، وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس موت کو فائدے میں کس نے بنا دیا، یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کیا موت پر ہمیں جو ماتم کرنا ہے یہ جائز ہے یا نہیں، کیا کرنا چاہیے ماتم یا نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے اکارڈنگ ٹو دی بائبل، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہابل مرا تو آدم نے ماتم کیا، رویا، دکھ کیا، اور جب آگے ہم چلتے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم جلدی آگے لے کے جائیں گے، تو میں ایک دم آدم سے آ کے ایک دم آ جاتا ہوں اسحاق پہ۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب اسحاق کو ربکا ملی تو اس نے تسلی پائی، اس نے اتنا اپنی ماں کا غم کیا۔ پھر ہم اور جمپ کرتے ہیں تو آگے چلے جاتے ہیں یعقوب پہ کہ جب یعقوب مر گیا تو یوسف اپنے باپ کے ساتھ لپٹ کر روتا رہا اور 40 دن مصری دستور کے مطابق اسے خوشبو لگائی اور ماتم کرتے رہے، اور 70 دن تک یہ ماتمی سسٹم چلتا رہا ان کا۔ 40 دن خوشبو برتے رہے، لگاتے رہے، اور 70 دن تک ماتم ہوتا رہا، اور خاص 7 دن کا یوسف نے مقرر کر دیا اس کے باپ کا ماتم، وہ اپنے باپ کی یاد مناتا رہا۔ پیدائش کی کتاب 50واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ 7 دن اس نے رکھ لیے۔ ہارون کی موت کی بات ہے کہ جب ہارون کی موت ہو گئی 30 دن تک اس کے لیے ماتم کیا گیا۔ گنتی 20واں باب 29ویں آیت۔ موسیٰ کی موت پر 30 دن ماتم کیا گیا۔ استثنا 34واں باب اس کی 8ویں آیت۔ اور اگر کسی کا ماتم نہیں کیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پر لعنت ہے۔ یرمیہ 16واں باب 4 آیت اور دوسرا تواریخ 21واں باب 9ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک، کیونکہ یہورام پر لعنت کی گئی تھی۔ اب آپ تھوڑا سا اس بات پر دھیان کریں کہ آپ یا ہم جتنے بھی ہیں، میں بھی آپ کا حصہ ہوں، کہ ہم جو اپنے پیرنٹس کا، اپنے ماں باپ کا، بھائیوں کا، بہنوں کا ماتم نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ خدا کی لعنت کے نیچے ہیں، یا آپ ان پر لعنت لاگو کر دیتے ہو؟ جس پر آنسو نہیں بہائے جاتے، جس کے لیے غم نہیں کیا گیا۔ آپ چالیے ساتے کی بات کرتے ہیں، تیسرا چالیا ساتا، اکثر لوگ کہتے ہیں جدا چالیا نہ ساتا مردہ گیا گواتا۔ جو تیسرا ہے یہ کہاں سے آیا؟ جب یسوع مسیح 3 دن 3 رات قبر میں رہا تو شاگرد ماتمی تھے، چھپے ہوئے تھے، غم میں تھے، اور پھر 7 دن کی بات آ گئی تو یعقوب کی 7 دن غم کی رسم قائم ہو گئی، اور 40 دن کی بات جو ہے، کہا جاتا ہے کہ روح 40 دن تک زمین پر رہتا ہے۔ مسیح خداوند بھی 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ شاگرد خوش بھی تھے، کئی غمگین بھی تھے، کئی شک میں بھی تھے، لیکن 40 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہودیوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ 40 دن تک تو اپنے قریب رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ
उसका रूह चला जाता है, लेकिन खुदा उसको लॉक नहीं करता, उसको बंद नहीं करता। ये यहूदियों की रवायत है, क्योंकि मैंने उनकी रवायतों को, उनकी किताबों को थोड़ा सा समझा है, जाना है, मेरे कुछ तलक है उनके साथ। तो ये है कि 40 दिन तक तो रूह ज़मीन पर फिरता है। 40 दिन के बाद उसको मौका होता है कि वो आसमान पर जा भी सकता है और आ भी सकता है, ज़ाहिर भी हो सकता है और नहीं भी, और इसका भी बाइबल में सबूत मिलता है। आप कहेंगे कि जी आपको मिलता है, हमें नहीं मिलता। आप स्टडी करो तो आपको मिल जाएगा। सैमुअल को के रूह को बुला लिया जिनकी आशना ने। अब वो कहेंगे नहीं जी वो तो सैमुअल नहीं था। अगर सैमुअल नहीं था तो जिन का वो जिन था, और जिन था तो जिन ने जो कुछ कहा वही कुछ शाऊल के साथ हुआ। इसका मतलब है वो सारा कुछ जानता है, इसलिए जादूगिरी को आप कंफर्म करते हैं। फिर यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ शाऊल पर और कहा कि ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। कितनी बातें हम इसको रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपको पता नहीं है तो आप यही बात पक्की कर दें कि नहीं जी ये तो बाइबल में है ही नहीं। अब और आगे आ जाए तो यहूदियों की ये भी रिवायत है कि पहले 5 साल तक वो शख्स अपने बच्चों को भी देखता है, बच्चों के पास आता भी है, और वो उनके साथ दुखी भी होता है, उनके कई कामों में उनकी हेल्प भी कर देता है। ये खुदा की तरफ से उसको छूट है। और वो देखो हेल्प की बात कि ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और कहा गया तू कौन है, तो कहा मैं यीशु नासरी हूं। क्यों सताता है? क्योंकि जब कोई किसी के पैरोकार को, किसी के मोहब्बती को, किसी की औलाद को तंग करता है तो उसकी रूह भी दुखी होती है। तो जिस्मानी तौर पर हम ये कहते हैं कि रूह दुखी होती है क्योंकि वो देखता है। और यीशु आ गया अपने लोगों को बचाने के लिए आया। शाऊल को ऐसा मोड़ा लगाया कि शाऊल खुद ही मार खाने वाला बन गया। शाऊल से वो पालूस बन गया। अच्छा, अगर ये बातें हैं तो हम बड़े हालेलुया कहते हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि मेरा बाप या मेरी माँ या मेरा भाई या कोई मुझे मिला है तो दुआएं करवाना शुरू कर देते हैं। दुआ करवाओ, मुझे अब्बा जी मिले हैं, मुझे अम्मी जी मिले हैं और मुझे भाई मिला, मेरे लिए दुआ करो, जैसे कि अब तैयारी हो गई। इसीलिए डरते हुए ना चालिया करते हैं, ना साता करते हैं, ना तीसरा करते। दूसरे दिन 2 देगे पकाई खाया और दरिया लपेटी, ख़त्म, छुट्टी, कपड़े भी बाहर फेंक दो और उस अब उसकी जायदाद पर कंट्रोल करो। कोई मोहब्बत नहीं। यीशु को मोहब्बत है कि वो लाजर के मरने पे रो रहा है, हालांकि वो जिंदगी का मालिक है। और आप जिसकी औलाद हो, ना कभी कब्र पे जाना, ना कब्र पे मिट्टी डालना, ना कभी उनका जिक्र करना। मैंने बहुत को देखा है अपने बाप का जिक्र नहीं करते, ना माँ का जिक्र करते हैं। इतना डरते हैं, इतने डरपोक हैं, इतने खुद गर्ज हैं कि उनका जिक्र करना, कईयों ने तस्वीरें भी घर से उतार दी हैं। हालांकि ये लिखा है वाइज की किताब में कि मातम वाले घर जाओगे तो तुम सुधरोगे, तुम अपने अंजाम पर गौर करोगे। जब हम किसी की कब्र पर जाते हैं तो पता चलता है ये शख्स कैसा था। क्यों यहूदी कब्रों पे जाते हैं? मैं गया हूं, इब्राहिम की कब्र है, इसहाक की कब्र है, अम्मा सारा की कब्र है, राखल की कब्र है, यकूब की है, यूसुफ की है। ये कब्रें क्यों बनाई गई हैं? मसीह की कब्र पर गया हूं। ये क्यों बनाई गई? ताकि जो कब्रों के अंदर हैं वो भी सबूत हो कि आखिर इंसान का ये है कि मनो मट्टी के नीचे दब गया। और जो यीशु की कब्र पे जाते हैं उनका ये खुशी की बात है कि देखो जो मसीह पर ईमान आता है वो गो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मेरी पैरवी करेगा, हलाक नहीं होगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब जिंदगी के नूर के लिए नूर को फॉलो करना है। और हम इंसान हैं, सब कमज़ोर हैं और
हमें लाजमी तौर पर अपने बड़ों को, अपने प्यारों को याद रखना है। कभी अंजाम को देखो कि मेरा बाप किस तरह से मेहनत करता था, मजदूरी करता था, गर्मी में, सर्दी में, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल, किस किस तरह से। कभी सोचो तो सही, क्योंकि सोचते हो आप उसकी प्रॉपर्टी लेने के कितने उद्यमी हो, कितने दावेदार हो, और उनकी जिंदगी पर कभी नहीं सोचा। यहां तक कि बाइबल ये कहती है कि मरे हुओं के लिए लोग बपतिस्मा लेते थे। पालूस कहता है अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुम मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते। इसका मतलब है कि मरने के बाद भी जो मर चुके हैं वो इस बात में इन्वॉल्व होते हैं। ये बाइबल की बात है। बाइबल में कोई ऐसी बातें बिदती नहीं लिखी, लेकिन कुछ जमातों ने, कुछ ग्रुपों ने, कुछ डिनोमिनेशन ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और अगर कैथलिक कहते हैं कि कब्रों पे जाओ तो कैथलिक बड़े बुरे हैं। अगर वो कहते हैं मट्टी डालो, चिराग जलाओ, याद उनकी करो, वो बहुत बुरे हैं। मज़ा तो ये है ना कि जिसको आप याद ही नहीं रखना चाहते उसकी प्रॉपर्टी भी ना लो, वो भी दे दो, डोनेट कर दो चर्च को, वो गवर्नमेंट को डोनेट कर दो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने बाप को भूल जाना चाहते हैं, अपनी माँ को भूल जाना चाहते हैं। वो जो हमारे लिए सर्दी गर्मी बर्दाश्त करती रही, जो दुख सुख बर्दाश्त करते रहे, हम भूलना चाहते हैं उनको, हम देखना भी नहीं चाहते, हम उनकी प्रॉपर्टी में भी नहीं रहना चाहते। उस वक्त आपको नहीं डर लगता उनकी प्रॉपर्टी में। खुदा का खौफ करो, खुदा से डरो, बाइबल को पढ़ो। ऐसे ही आपको मौलवी पादरी आगे मिल गए हैं। मौलवी पादरी, मेरे कहने का मतलब है लीडर। मुसलमान तो जाते हैं कब्रों पर, कैथलिक भी जाते हैं, यहूदी भी जाते हैं। सिर्फ ये पखंडी ग्रुप जो है ना, जो ना 9 के ना 13 के, बस खुद ही बखुद चले हैं, ना सेमिनरियों में भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। कई तो रेडीमेड गोलियां टाफियां जैसे रख के टेबल पे तो बैठे हैं। इसी तरह उन्होंने अपने घर में ही सेमिनरी खोली हुई है, और कई सेमिनरीज बनी हुई हैं। ये सब नहीं, कई तो ऐसी सेमिनरीज हैं जो जिनमें वाकई खुदा के खादम सही तौर पर रवायतें भी पढ़ाते हैं, और अबरानी पढ़ाते हैं, यूनानी पढ़ाते हैं, अरामी पढ़ाते हैं। फिर वो जो तारीख़ है, वो जगराफिया, आर्कियोलॉजी और उसकी बायोलॉजी के बारे में सारा कुछ बताते हैं। और बहुत सारे हैं बस जी ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए, मोटर मैकेनिक का जैसे सर्टिफिकेट हो गया, सिलाई सेंटर का सर्टिफिकेट हो गया, बस चाहिए तो बस शुरू हो जाओ, अपनी दुकान बना लो। और कुछ लोग पखंडी मिल जाते हैं, उसको बदरूएं निकल गई, वो गिरना शुरू हो गया, अब वो उसको बरकत मिल गई। कहाँ बाइबल में लिखा है कि मसीह के फॉलोअर जो हैं उनको बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे? जो मसीह का फॉलोअर है वो उसे दुखों में से गुजरना है। पतरस कहता है अपने खत में, ये जो मुसीबत की आग तुम में भड़की है ये तुम्हारी आजमाइश के लिए है। जैसे जैसे दुखों में से गुजरोगे मसीह में शामिल होते जाओगे। हाँ, ये इधर क्या होता है, मसीह के हो जाओ, कमेटियाँ निकल आएंगी, लड़के पैदा होंगे, गार सुधर जाएंगे, ये करो, दयाकी दो, वो करो, आपकी तो मौजें लग जाएंगी। इस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं लोग, कमेटियाँ डाल डाल के इनको पैसे देते हैं, ये सेलेब्रिटीज़ बन जाते हैं, ये अजीम खादम बन जाते हैं, ये ऐसे ऐसे पखंडी बन जाते हैं। जैसे वो रीछ नचाने वाला कहता है ना, बच्चू मजूरे नाचेगा, लड़ेगा, पेट की खातर करेगा। इन्होंने भी इसी तरह ऐसे बच्चू मजूरे रखे हैं, अंदर ही अंदर लोगों के घरों में घुस जाते हैं, जाके उनकी बातें सुनेंगे और सुनकर फिर वो पादरी को पहुंचाएंगे। और पादरी आगे पुलपट पे कह रहा होता है, मुझे खुदा का रूह बता रहा है, यहाँ पर एक बहन है और उस बहन की ये प्रॉब्लम है, तुझे बहन का पता है तो बहन का नाम भी बता, क्योंकि बहन का नाम नहीं बताना। और रूहुल कुद्दस किसका नाम रखा हुआ है? उस लड़की का जो उसके घर जाके मुखबरी करके आई है, सारी सीआईडी करके आई है, सारी बातें पूछ के आ गई, आके उसने पादरी की बीवी को बताया। पादरी ने अब अपने पुलपट पे चढ़ के अब वो नबी बन के बैठा हुआ वहां पे।
क्यों लोगों को इस तरह से वर्ग लगा रहे हो? खुदा के कलाम की बातें बताओ, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो नूर है, खुदा का कलाम शीशा है, खुदावंद का कलाम आग है, खुदावंद का कलाम हथौड़े की मानद है, खुदावंद का कलाम पानी की मानद है। आप कलाम दो लोगों को, लोगों की प्यास बुझे, लोगों को जिस तरह पौलुस ने कलाम सुनाया तो लोग तब्दील हुए, जैसे पतरस ने कलाम सुनाया उनके दिलों पर चोट लगी। कभी ये कलाम हथौड़े की मानद काम करता है, कभी ये शीशे की मानद चेहरा दिखा देता है, कभी ये तेल की मानद आपको तरोताज़ा कर देता है। इस तरह से बताएं लोगों को, ताकि लोगों के अंदर बहाली हो, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो जाए, लोगों के अंदर असर और रसूख बेहतर हो, लोगों के अंदर तल्लुकात बेहतर हो जाए माँ बाप के साथ। क्योंकि कलाम में लिखा है माँ बाप की तू इज़्ज़त करेगा तो तेरी उम्र दराज होगी। जब माँ बाप के साथ बच्चों का रिलेशन अच्छा, आप तो हर वक्त रोते रहते हो चंदे को, दैयतियों को, और बच्चों मजूरे की तरह डिब 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 डिब, आओ जी शफा ले लो, आओ जी शफा ले लो, अपने हिस्से की शफा ले लो, आज आपको शफा मिलेगी, आओ जी आप शफा। लोगों को शफा देते हो, लोगों को बरकत देते हो, तुम्हें क्यों नहीं मिलती? तुम क्यों गोरों को देखते हो? तुम क्यों कालों के पीछे लगे हो? किसी का मिशनरी अफ्रीका में है, किसी का मिशनरी अमेरिका में है, किसी का मिशनरी कोरिया में है, किसी का मिशनरी यूरोप में है। आप किस यीशु की मनादी करते हो? तुम्हारे जो कोई यीशु काला है, किसी का अमेरिकन है, किसी का अफ्रीकन है, किसी का कोरियन है, किसी का यूरोपियन है। यीशु नासरी तो देखो किधर है वो। लोगों को मेल जोल सिखाओ, लोगों को कदर करना सिखाओ, लोगों को मोहब्बत सिखाओ, लोगों को सिखाओ कि अपने माँ बाप को याद रखो। पक्की कब्र नहीं बनानी जी, ये किसने कहा? ये तो इस्लामी की तालीम है, पक्की कब्र नहीं बनानी। तुम्हें किसी चीज का पता नहीं है कि कहां से ये रूट चला, कहां से हमने ये बात शुरू की, और सिर्फ एक ही, ना कोई तौबा की मनादी करता है, ना बपतिस्मे की मनादी करता है, ना रूहुल कुद्दस को अज़मत देता है, ना मसीह को अज़मत देता है। कभी किसी को कह दिया अजीम, कभी किसी को कह दिया अजीम, मेरा पादरी अजीम है। मैंने कईयों की स्टोरी सुनी है, को एक लड़की ने रो रो के बताया कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ ठीक नहीं है, लेकिन जो कमाई करता वो पादरी को देता है, और पादरी आगे मुंह से झाग निकल रही है, ऐसा उनको मजमा लगाना आता है, लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। ख़ानदानों को, कई औरतों ने अपने हस्बैंड को तलाक दे दी, पादरी के साथ रहना जी। मैं चर्च नहीं छोड़ सकती, मैं इस पादरी को नहीं छोड़ सकती। तो तू भूल गई है वो निकाह जिसमें कहा था जब तक मौत जुदा ना करे हम जुदा नहीं होंगे। इसका मतलब है ये पादरी तेरी मौत बन गया, इस पादरी ने तुम्हारा खानदान खराब कर दिया। खुदा के लोग जोड़ते हैं, खुदा के लोग सबसे पहले अपने खानदान की केयर करें, उसके बाद फिर खुदा आएगा। अगर खानदान इकट्ठा है तो खुदा होगा। लिखा है कि खुदा तुम्हारे दरमियान होगा जब तुम इकट्ठे होंगे। मसीह ने कहा जा अपने शौहर को लेके आ ताकि तुझे बरकत मिल जाए। फिर मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां हाजिर हूंगा, जिसका मतलब पहले खानदान फिर खुदा हाजिर होता है। आप किस खुदा की इबादत करते हो? खानदानों को तोड़ दिया है, रिश्तों को तोड़ दिया है, रिश्तों का तकद्दस खत्म कर दिया है, यादें खत्म कर दी हैं, और चले हैं आसमान पे जाना है हमने। मुझे तो लगता है कि इन्हें बदला तो जी नहीं तुसा जाना, आसमान ते किथे जाना? जिन्ना भी चक्कर देना है दे दो। ऐसी ऐसी इंडस्ट्रियां बनाई हुई हैं, ऐसे अंदर अंदर अपने मुकबर छोड़े हुए हैं, ऐसी इस तरह से लोगों के घरों में भेद लेते फिरते हैं। बाद में फलां पास्टल, फलान रसूल, फलाना नबूवत करने वाला, सब झूठे फराडिये चक्करबाज। जब तोबा की मनादी करोगे यूहन्ना की तरह, जब रूहुल कुद्दस की अजमत के नीचे आ जाओगे, फिर खुदा की खादम बनोगे, खादमा बनोगे। अदरवाइज सब कलाम से बाहर है, और जो खुदा के कलाम से बाहर है वो बिल्कुल बेकार है।
पकड़े जाओगे, हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, और फिर रोना होगा, पछतावा होगा, मायूसी होगी, परेशानी होगी।